students, in last lecture, that is Monera part 1, I explain you Archaebacteria. In Archaebacteria, I explain you H empty, H for halophiles, M for methanogens and T for thermoacidophiles. Actually, these are the group of bacteria that live in extreme conditions. Then I explain you Eubacteria. In Eubacteria, I explained cyanobacteria, that is blue-green algae. Then I explained chemoautotrophs. These two groups of bacteria that is included in Eubacteria is autotrophic in nature. And now I will discuss heterotrophic bacteria. Heterotrophic bacteria are the most abundant in nature. Most of the bacteria cannot synthesize their own organic food. We are familiar the name of bacteria as a pathogen, as a disease causing agent, and that popular and horrible famed bacteria is actually heterotrophic bacteria. They require at least one organic compound as a source of carbon for their growth and energy. Such bacteria are heterotrophic bacteria. They can survive as a parasite, they can survive as a saprotrophs, they can survive as a symbionts. Heterotrophic bacteria are of three types: parasites, saprotrophs and symbionts. Now this is the structure of bacteria. In this structure, this is very simple structure. Actually bacteria have a simple structure, that is there is a envelope. This envelope is actually three layered: capsule, cell wall and then plasma membrane. In my last lecture, Monera part 1, I explained it in detail, but here also I will discuss it. Most of the prokaryotic cells, that is bacteria is also a prokaryotic cell. Particularly bacterial cells have a chemically complex cell envelope. The layers of cell envelope stack upon one another and are often bonded together tightly. In electron micrograph, three basic layers actually स्टैक अपॉन वन अनदर. जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होगे कि एक दूसरे के ऊपर ये लेयर्स जो हैं स्टैक रहती हैं. कैप्सूल है, उसके नीचे सेल वॉल है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ थ्री बेसिक लेयर्स कैन बी आइडेंटिफाइड: द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल and cell membrane. Although each layer of the envelope performs a distinct function, together they act as a single protective unit. ये एक सेल एनवलप बनाते हैं. और साथ ही साथ ये जो कैप्सूल है, इसके बाहर की तरफ कभी कभी एक लूज शीट स्लाइम लेयर की बनी हुई होती है, which protects the cells from loss of water and nutrients. तो ये भी कैप्सूल के साथ का ही आप इसे हिस्सा मानिए. द ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर कंप्राइजिंग अ कोटिंग ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स विच प्रोटेक्ट्स सेल्स एंड ऑल्सो हेल्प्स इन एडिशन. तो कैप्सूल जो है ये ग्लाइकोकैलिक्स का बना हुआ होता है और ये सेल को प्रोटेक्शन भी देता है और एडहेशन भी, यानी सेल को कहीं अटैच होना है तो उसमें भी हेल्प करता है. दिस लेयर डिफर्स इन थिकनेस एंड केमिकल कंपोजिशन इन डिफरेंट बैक्टीरिया. ओके स्टूडेंट्स, सम बैक्टीरिया हैव अ लूज शीट कॉल्ड स्लाइम लेयर विच प्रोटेक्ट्स द सेल्स फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर. तो इसी कैप्सूल लेयर के चारों ओर कभी स्लाइम लेयर भी होती है, जो कि एक्चुअली है तो कैप्सूल का ही हिस्सा. द कैप्सूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग गमी एंड स्टिकी कैरेक्टर टू द सेल ड्यू टू स्लाइम लेयर. स्लाइम लेयर होती है, इस वजह से ही कैप्सूल जो है वो एक गमी एंड स्टिकी कैरेक्टर नेचर सेल वॉल को दे पाता है, इसकी सेल को, बैक्टीरियल सेल को. दिस लेयर इज नॉट एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल सर्वाइवल बट कैन एट टाइम्स बी हाईली स्पेसिफिक एंड इम्यूनोजेनिक. जरूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया में ये लेयर प्रेजेंट हो, कैप्सूल के साथ स्लाइम लेयर हो, बट अगर ये किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है तो ये लेयर जो है वो उसे एक एडिशनल एडवांटेज देती है कि अगर वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी है तो वो जिस होस्ट की बॉडी में जाएगा वहाँ पर वो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्सेस जो है प्रोड्यूस कर सकता है. Okay students, cell wall is the second layer of the cell envelope below the glycocalyx. This layer determines the shape of the cell and provides a kind of strong structural support to prevent a bacterium from bursting or collapsing in a hypotonic solution. देखिए ये जो सेल वॉल वाला स्ट्रक्चर है, सेकंड पार्ट दिख रहा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर बैक्टीरियल सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया जाए या हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया जाए, तो आप जानते हैं हाइपो में रखा जाएगा तो क्या होगा कि इसके अंदर जो है
वाटर आने लग जाएगा, ज़्यादा वाटर होता है हाइपोटोनिक में, वहाँ से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आने लग जाएगा। तो ये जो सेल हो सकती है बैक्टीरियल सेल बर्स्ट कर सकती है। या अगर कभी इसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया जाए तो बैक्टीरियल सेल से जो इसका वाटर है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर है जिसमें वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, तो वो वाटर क्या होगा, लगातार लूज होता जाएगा सेल के अंदर से। तो दिस लेयर डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। सेल वॉल लेयर जो है वो शेप को डिटरमाइन रखती है, प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग structural support to prevent a bacterium from bursting or collapsing in a hypotonic solution. This layer is rigid due to a special micromolecule called peptidoglycan. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो लेयर है, सेकंड लेयर सेल वॉल, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकैन पाया जाता है। बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकैन पाया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। और मैंने अभी आपको बताया जो फंक्शन मैंने आपको बताया कि सेल से वाटर लूज हो सकता है या सेल के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर एंटर कर सकता है, तो ये फंक्शन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से होता है। आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एक्चुअली सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, सो दैट इफ बैक्टीरियल सेल केप्ट इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन देन सेल विल swell and can burst, and if anyone keep it bacterial cell in a hypertonic solution, then cell will loses its water content from cytoplasm and then cell will be disintegrate, यानी सेल का जो एग्जिस्टेंट एज ए सेल के फॉर्म में है वो ख़त्म हो सकता है। तो ये सारा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर होने की वजह से होता है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर एक और लेयर के रूप में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो इसमें हिंड्रेंस पैदा करती है कि हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दिया जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो नेचर है वो उसकी वजह से सेल बर्स्ट हो जाए या उसका सारा साइटोप्लाज्म ख़त्म हो जाए, ऐसी कंडीशन ना आने पाए। तो इसमें थोड़ा हेल्प करती है कौन, सेल वॉल जो होती है वो हेल्प करती है, क्योंकि वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है। और साथ ही साथ ये मैंने आपको बताया पेप्टिडोग्लाइकैन से बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकैन में म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड है। पेप्टिडोग्लाइकैन में ये रिपीटिंग फ्रेमवर्क ऑफ लॉन्ग ग्लाइकैन स्ट्रैंड, ग्लाइकैन पेप्टिडोग्लाइकैन क्या है, ग्लाइकैन की बहुत सारी यूनिट्स जो हैं वो कई बार रिपीटेडली जुड़ करके पेप्टिडोग्लाइकैन बनाती हैं। और जो सबसे पॉपुलर हैं एन एसिटिल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल में, जिसे कि क्या कहा जाता है, नैग नैम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नैग नैम पूछा जाता है। तो नैग में एन एसिटिल ग्लूकोसामिन एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड पाया जाता है, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। आप एनसीईआरटी में आप इसे लिखा हुआ भी देखेंगे, जो वहाँ पर चार्ट बना हुआ है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, उसमें लिखा हुआ है कि जो बैक्टीरिया यानी मोनेरन्स की सेल वॉल होती है उनमें सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है, जो कि म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड होते हैं। और इसी का एक प्रकार है नैगनैम एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड या एन एसिटिल ग्लूकोसामिन। ये क्रॉस लिंक्ड रहते हैं और एक पॉलीमर जैसा स्ट्रक्चर, एक सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाते हैं। ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स पेंसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन्स इनहिबिट क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन स्ट्रैंड्स। कुछ जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, जिसके एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रही हूँ, पेंसिलिन भी इसी तरीके से काम करती है। तो सबसे सिंपल वही एक एंटीबायोटिक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड थी। तो सेफेलोस्पोरिन नाम की एंटीबायोटिक हो या पेनिसिलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या करती है, कैसे काम करती है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल में, मैंने आपको बताया कि इनमें क्या होता है कि ग्लाइकैन्स होते हैं और इन्हीं का क्या होता है, ये एक दूसरे से क्रॉस लिंकिंग करके कनेक्ट रहते हैं। तो ये कनेक्ट होकर के पेप्टिडोग्लाइकैन बना सकते हैं। तो जो एंटीबायोटिक है पेंसिलिन, वो क्या करती है, इस क्रॉस लिंकिंग को, यानी ये जो बॉन्ड बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बॉन्ड यहाँ बने हुए हैं जिससे ग्लाइकैन यूनिट्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है पेंसिलिन एंटीबायोटिक की वजह से। तो क्रॉस लिंकिंग इनहिबिट हो जाती है और इसकी वजह से जो बैक्टीरियल सेल है उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। इस तरह एंटीबायोटिक्स ये होती हैं और ये बैक्टीरिया
की सेल को ख़त्म कर देती हैं, एग्जिस्टिंग सेल को ख़त्म भी कर देती हैं, और इससे और आगे बैक्टीरिया जो है नहीं बन पाते, उनका नंबर किसी बॉडी में नहीं बढ़ पाता है, होस्ट की बॉडी में नंबर जो है वो ख़त्म हो जाता है, उनका नंबर कम होने लग जाता है। नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन्स इनहिबिट क्रॉस लिंकिंग ऑफ peptidoglycan strands. Therefore, cells undergo lysis in the presence of these antibiotics. Lysozyme is a naturally occurring enzyme in saliva and tears that also provides defense against certain bacteria by hydrolyzing the peptidoglycan. हमारा जो टीयर होते हैं, हमारे आंसू हैं, या हमारी जो सलाइवा होता है सलाइवरी ग्लैंड में बनता है, वहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम एंजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम में भी यही जो पेप्टिडोग्लाइकेन की क्रॉस लिंकिंग बनती है, उस क्रॉस लिंकिंग को ये एंजाइम लाइसो एंजाइम ब्रेक कर देता है, और इससे भी बैक्टीरियल ग्रोथ को सलाइवा या टीयर जब होंगे रिलीज होंगे तो वो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मेडिकल में, और हमें लगता है कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गए। एक्चुअली ये क्या है, ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं। अगर आप ध्यान से अपनी बुक पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, तो उसमें ही ये सारे पॉइंट्स जो हैं डिस्कस किए गए हैं। ओके स्टूडेंट, ग्राम स्टेनिंग। अब देखिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ मैं। तो वो भी डिफरेंस किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल की वजह से होती है। एक्चुअली सिंपल वे में अगर आप समझना चाहें तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल थिकर होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थोड़ी थिन होती है। अब मैं आपको डिटेल में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगी। एक्चुअली ये जो नाम दिया गया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, वो एक स्टेनिंग टेक्निक की बेसिस पर दिया गया है। बैक्टीरिया के दो ग्रुप्स पाए गए, एक स्टेनिंग टेक्निक अपनाई गई, तो देखा गया कि उस ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जिसे कहते हैं, इस स्टेनिंग टेक्निक से कुछ बैक्टीरिया थे जो पॉजिटिव स्टेन करते हैं, पॉजिटिवली स्टेन रहते हैं, और कुछ बैक्टीरिया स्टेनिंग नहीं लेते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया स्टेनिंग नहीं लेते उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, और जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो स्टेनिंग लेते हैं। तो अब ग्राम स्टेनिंग क्या है और ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया में कैसे ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, जानने के लिए, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो इसे मैं अब एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्चुअली ग्राम स्टेनिंग इज ए स्पेशल टेक्निक विच इज़ यूज्ड टू क्लासीफाई बैक्टीरिया इनटू टू ग्रुप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। The bacteria are stained with weakly alkaline solution of crystal violet या जेंशियन वायलेट। तो सिंपली आप याद रखें कि क्रिस्टल वायलेट एक केमिकल होता है, क्रिस्टल वायलेट या जेंशियन वायलेट भी इसे कहते हैं। तो क्रिस्टल वायलेट से, क्रिस्टल वायलेट के अल्कलाइन सोल्यूशन, वीकली अल्कलाइन सोल्यूशन से जब बैक्टीरियल सेल को स्टेन किया जाता है, तो द stained side of bacteria is then treated with 0.5% of iodine solution। सबसे पहले क्या किया जाता है ग्राम स्टेनिंग में, सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट लिया जाता है, क्रिस्टल वायलेट, और क्रिस्टल वायलेट से स्टेनिंग कर दी जाती है, और उसके बाद 0.5% क्या करते हैं, 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन का ट्रीटमेंट देते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, दिस इज़ फॉलोड बाय वॉशिंग विद वाटर एंड देन विद अल्कोहल और एसीटोन। फिर इसके बाद वॉशिंग करते हैं, तो वॉशिंग पहले वाटर से करते हैं, फिर उसके बाद अल्कोहल से करते हैं। तो जब ये वॉशिंग की जाती है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द सेल एनवलप्स ऑफ टू ग्रुप्स। इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द सेल वॉल इज थिक एंड इज प्राइमरीली मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, while in gram negative bacteria the cell envelope shows 3 layers. The cell envelope is composed of outer membrane and a thin layer of followed by the plasma membrane. द ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल जो है वो ज़्यादा थिक होती है, लगभग 20 to 80 नैनोमीटर की होती है, और इसमें टाइटली बाउंड टेकोइक एसिड्स भी एडिशनल कंपाउंड के रूप में पाया जाता है। यानी पेप्टिडोग्लाइकेन से तो बनी ही होती है, साथ ही साथ इनमें टेकोइक एसिड भी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल में टेकोइक एसिड भी पाया जाता है। टेकोइक एसिड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, टेकोइक एसिड भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टेकोइक एसिड पाया जाता है। द आउटर फेस ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन्स लिपोपॉलीसैकेराइड्स, अ पार्ट ऑफ विच इज इंटीग्रेटेड इनटू द मेम्ब्रेन लिपिड्स। द इनर फेस हैज अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स विच आर एंकर्ड इनटू पेप्टिडोग्लाइकेन। द outer membrane of gram negative bacteria contains
proteins called porins, and these proteins function as channels for the entry and exit of hydrophilic low molecular weight substances. The wall is that of gram positive type, but a part of their cell wall is made up of very long chain of the fatty acid माइकोइक एसिड. तो जैसे कि आपने देखा टेकोइक एसिड पाया गया है, किसमें पाया गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में. उसी तरीके से माइकोइक एसिड पाया जाता है सेल वॉल में, किसकी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आप देखेंगे तो माइकोइक एसिड पाया जाता है. बाकी बेसिक स्ट्रक्चर सेल वॉल का दोनों ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव का एक जैसा होता है. नेगेटिव में माइकोइक एसिड और पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको टेकोइक एसिड जो है वो मिलता है. और साथ ही साथ ये ग्राम स्टेनिंग के साथ जो दोनों का जो रिस्पॉन्स होता है वो अलग अलग होता है. क्या डिफरेंस होता है कि पहले क्रिस्टल वायलेट से जब स्टेन करते हैं और उसके बाद उसमें 0.5% आयोडीन सोल्यूशन से ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसके बाद पहले तो दोनों ही सेल, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ग्रुप हो या ग्राम नेगेटिव का, दोनों ही पर्पल कलर ले लेते हैं. लेकिन इसके बाद जब वॉशिंग की जाती है, वॉशिंग विद अल्कोहल की जाती है, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्रुप होता है उसमें पर्पल कलर जो है वो रह जाता है, और जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का पर्पल कलर जो है वो लूज़ हो जाता है. तो इस तरीके से ग्राम स्टेनिंग के थ्रू ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट किया जा सकता है. बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहूँगी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का थोड़ा और. द बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिमेन कलर्ड ब्लू और पर्पल विद ग्राम स्टेनिंग इवन आफ्टर वॉशिंग विद अल्कोहल. अभी बताया मैंने आपको. द बैक्टीरिया दैट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन द स्टेन व्हेन वॉश्ड विद अल्कोहल. जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें सेल वॉल थिक होती है, लेकिन उसके जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए सेल वॉल का ही अभी तक डिस्कशन मैंने डिटेल में किया, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, उसमें दो फेस होते हैं, आउटर फेस और इनर फेस होता है. किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो फेस होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में. तो दो फेस होते हैं, आउटर फेस और इनर फेस, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है. और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक होती है जो कि 20 to 80 नैनोमीटर थिकनेस होती है उसकी. और जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें तो नेगेटिव की सेल वॉल जो है 8 to 12 नैनोमीटर ही थिकनेस होती है. और ये बताई ही मैंने आपको कि ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल में टिकोइक एसिड होती है और ग्राम पॉजिटिव में टेकोइक एसिड प्रेजेंट है, और माइकोइक एसिड जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, वो ग्राम माइकोइक एसिड जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है स्मूथ होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है वेवी होती है. और जो म्यूरिन जिसकी बात हम कर रहे थे, नैम एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड जिसे कहा था मैंने, तो वो म्यूरिन कंटेंट भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा होता है, 80% तक लगभग होता है. और जो बेसल बॉडी होती है, फ्लैजिला अभी मैं आपको डिस्कस करूंगी तो मैं बताऊंगी आपको. यहाँ मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का फ्लैजिला में 2 रिंग होती है बेसल बॉडी में, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बेसल बॉडी में 4 रिंग्स होती हैं. और बहुत सारे मीजोसोम्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और ग्राम पॉजिटिव से कुछ ही पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग करते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव में जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ग्रुप है, मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है ग्राम नेगेटिव ग्रुप से जो इन्वॉल्व रहते हैं. और इन ग्राम नेगेटिव से ज़्यादा पैथोजेनिक बैक्टीरिया सब इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं. और ये बताया मैंने आपको, रिलेटिवली हाई लिपिड कंटेंट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में उसकी, ठीक है. और इसीलिए क्योंकि लिपिड कंटेंट जो है वो हाई है अमाउंट में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, तो इसीलिए ये क्या होते हैं, जब वॉशिंग की जाती है तो ये स्टेनिंग जो है
वो परमानेंट नहीं रहती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने बता दिया सेल एनवलप के बारे में, बैक्टीरियल सेल एनवलप के बारे में, कैप्सूल के बारे में बताया, सेल वॉल के बारे में बताया, थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बार और बता देती हूँ, सिंपल जैसे बाकी सारे मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनमें भी वैसी ही होती है। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स द मेम्ब्रेन फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द साइटोप्लाज्म बीइंग गार्डेड फ्रॉम आउटसाइड by extracellular matrix and the cell wall. The membrane is responsible for the relationship of a cell with the outside world. Another characteristic of the prokaryotic membrane is its semi permeable nature. वो तो आपको बताया है कि अगर सेल मेम्ब्रेन है तो हमेशा सेमी परमिएबल नेचर की ही होगी. It means it will be permeable to some substances to a variable degree, and there are some carrier molecules embedded within the membrane which bind to specific molecules and transport them in specific direction. यानी कि जब हम वैसे तो जब मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटेल में बताऊंगी तब वहाँ पर और डिटेल में बताऊंगी. यहाँ आप बस इतना समझ लीजिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव परमिएबल नेचर की होती है. तो इस तरीके से जो मेम्ब्रेन है कंट्रोल्स फ्लो ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द वेरियस कंपार्टमेंट्स और इट अंडरगोज डायनामिक चेंजेस तक. तो ये हमने देख लिया. मेन कंपाउंड जो सेल मेम्ब्रेन में है वो वही है जैसा कि यूजुअली लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, वही यहाँ पे भी होता है. ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी कुछ अमाउंट में पाया जाता है. फिर इसके बाद अब जब यहाँ तक स्ट्रक्चर में हमने सिर्फ अभी यहाँ सेल एनवलप को ही डिस्कस किया मैंने आपके साथ. तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैक्टीरियल सेल में शेप. मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया हुआ था कि जो बैक्टीरिया है डिफरेंट शेप के हो सकते हैं. अगर गोल हैं तो उन्हें हम कहेंगे कि कॉक्सी बैक्टीरिया कहते हैं, और अगर वो रॉड शेप के हैं बैसिलाई कहते हैं. अगर कॉमा शेप के हैं वाइब्रियोस टर्म यूज़ करते हैं, और अगर स्पाइरल शेप है तो स्पाइरलम कहते हैं. यहाँ पर ये डायग्राम में भी क्लियर हो रहा है आपको. और स्पेशली जो स्पाइरलम ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है इनमें फ्लैजिला मोर देन 2 प्रेजेंट होते हैं, और बाकी जो कॉक्साई है उनमें फ्लैजिला मोस्टली नहीं होते हैं. वाइब्रियो में भी हो सकते हैं और बैसिलाई में भी कभी कभी पाए जाते हैं. तो अब हम लोग, वैसे तो मैंने आपसे कैप्सूल डिस्कस कर दिया, फिर भी यहाँ एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. कैप्सूल इन अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया स्लाइमी कैप्सूल इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल. इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स जिसका नाम मैं आपको बार बार बोल रही थी, पेप्टिडोग्लाइकैन, एंड द नाइट्रोजनस पॉलीसैकेराइड जो कैप्सूल में प्रेजेंट. पेप्टिडोग्लाइकैन तो एक्चुअली सेल वॉल में प्रेजेंट है. ये कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मैं एक बार आपको फिर से बता रही हूँ. एक्चुअली वो ग्लाइकोकैलिक्स मटेरियल है. जो कैप्सूल है, कैप्सूल में ग्लाइकोकैलिक्स है और सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकैन है. पेप्टिडोग्लाइकैन क्या है? एक रिपीटेड फ्रेमवर्क, रिपीटेड ग्लाइकैन जो होते हैं वो क्रॉस लिंकिंग से एक फ्रेमवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और सेल वॉल बनती है उससे. तो सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकैन है, जबकि कैप्सूल जो है ग्लाइकोकैलिक्स उसमें प्रेजेंट होता है. तो पॉलीसैकेराइड है जो कि एक, साथ ही साथ इसमें कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं. स्लाइम लेयर बिकम्स थिक कॉल्ड कैप्सूल, एंड जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं स्पेशली उनमें स्लाइम लेयर जरूर पाई जाती है. और वो जो बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, बीमारी फैला सकते हैं, वो वायरुलेंट कहलाते हैं. जैसे कि एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रासाइड, या न्यूमोनिया का बैक्टीरिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी, या टीबी का बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. तो इतना डिस्कशन मैंने आपके साथ बताया था, फिर से एक बार रिपीट किया है. फिर सेल वॉल की डिस्कशन करते हैं. बैक्टीरिया की सेल वॉल मैंने आपको बताया कि ये पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है. ऑल बैक्टीरियल सेल्स आर कवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग रिजिड सेल वॉल, और इनको इसीलिए बैक्टीरिया को प्लांट्स के साथ ग्रुप किया जाता है. इनर टू द कैप्सूल द सेल वॉल इज प्रेजेंट. इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. और जो जिसका नाम मैंने आपको बताया पेप्टिडोग्लाइकैन था, और उसी में बताया था इसी में म्यूरिक एसिड पाया जाता है. तो उसी को कहा था कि नैम एनासेटिल म्यूरामिक एसिड एंड एनासेटिल ग्लूकोसामीन जो बताया था. तो ग्लूटामिक एसिड
और ये भी पाए जाएंगे। तो जो एक स्ट्रक्चर बनता है, मॉलिक्यूल जो बनता है, उसका नाम होता है नैग या नैम। तो ये दोनों ही पाए जा सकते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल में। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ईच बैक्टीरियल सेल हैज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज सिचुएटेड जस्ट इंटरनल टू द सेल वॉल। इट इज़ अ थिन इलास्टिक ऑल्सो डिफरेंशियली सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ जो बहुत कम स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनल्स वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो मीजोसोम्स या क्रोमेटोफोर्स नाम के कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप जो बैक्टीरियल सेल देख पा रहे हो, इसमें पूरा देखिए कैप्सूल को दिखाया गया है। सबसे बाहर की लेयर जो होती है इसकी कैप्सूल है, ये आप देख रहे हैं। फिर इसके नीचे की जो लेयर है सेल वॉल है, उसके अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये मिल करके इसका सेल एनवलप बनाते हैं। कभी कभी इनकी सरफेस पर फिम्ब्री पाए जाते हैं, फिम्ब्री नाम के ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और ये देखिए एलोंगेटेड फ्लैजिला आपको दिखाई दे रहा है, ये बैसिलस टाइप के बैक्टीरिया को दिखाया गया है। और इसी तरीके से इनमें जो मेन है कंटेंट, ये बीच में जेनेटिक मटेरियल है, इसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और आगे अभी मैं आपको ये डिस्कस करने वाली हूँ कि न्यूक्लियोइड क्या होता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल इसमें पड़ा हुआ है। साथ ही साथ राइबोसोम्स इसमें पड़े रहते हैं। ये राइबोसोम्स क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें 70S टाइप के राइबोसोम्स जो हैं ये साइटोप्लाज्म में ऐसे डिस्पर्स्ड रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। द साइटोप्लाज्म रेफर्स टू ए कॉम्प्लेक्स एंड एक्वस फ्लूइड और सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। दिस मटेरियल कंसिस्ट ऑफ विटामिन, सॉल्ट्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, सॉल्युबल प्रोटीन्स, कोएंजाइम्स, लिपिड्स, मिनरल, न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे मेन जो है वो है न्यूक्लिक एसिड। द ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट इन द कोलाइडल स्टेट। तो ये जो साइटोप्लाज्म है आप जानती ही हैं कि ये कोलाइडल नेचर का होता है। द साइटोप्लाज्म इज ग्रैनुलर, ग्रैनुलर भी होता है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है साइटोप्लाज्म के अंदर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए जो बैक्टीरिया का भी साइटोप्लाज्म है वो ग्रैनुलर दिखाई देता है। अब मैंने आपको न्यूक्लियाइड के बारे में बताया था, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड पड़ा रहता है उसी को न्यूक्लियाइड कहते हैं। इट हैज़ अदर कॉमन नेम्स लाइक जीनोफोर, यानी कि जो न्यूक्लियाइड है उसी एक और नाम है जीनोफोर, या एक्चुअली ये नेकेड न्यूक्लियस होता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी इसका एक नाम है। देयर इज न्यूक्लियर मटेरियल इन दिस। ये न्यूक्लियर मटेरियल कौन सा है, ये डीएनए है। ये क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल के रूप में यहाँ पर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, जो कि डबल हेलिकल है। देखिए जरूर याद रखिएगा कि जो बैक्टीरियल सेल होती है, तो बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए होता है वो सिंगल सर्कुलर बताया जाता है। लेकिन सिंगल सर्कुलर का मतलब है कि जो पूरा डीएनए है, पूरा जेनेटिक मटेरियल है, वो एक छोर से लेके दूसरे छोर पर लास्ट बंधा हुआ होता है। जैसे ऊन का गोला होता है, तो ऊन का गोला एक जहाँ से एक जगह शुरू होगा और एक जगह ख़त्म होता है, और वैसा ही सिंगल होता है। और वो सर्कुलर स्टेज में इस तरह से इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स जो होते हैं वो अटैच रहते हैं, बाइंड रहते हैं कुछ प्रोटीन्स के माध्यम से, और वो नॉन हिस्टोन नेचर की प्रोटीन्स होती हैं। और ये जो डीएनए होता है ये एक्चुअली इसे इस तरीके से बनाया जाना चाहिए, ये सर्कुलर डीएनए इस तरीके का होता है। तो डबल स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि आप डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। और लेकिन यूकैरियोटिक सेल में कैसा डीएनए पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो ऐसा होता है, ऐसा, ये डबल स्टैंडर्ड है और हेलिक्स बनाता है। लेकिन ये पूरा जेनेटिक मटेरियल जो एक सेल में यूकैरियोटिक सेल के अंदर रहता है वो सारा एक साथ कनेक्टेड नहीं रहता है। और इसीलिए कहते हैं कि जैसे ह्यूमन में देखते हैं तो ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम पाए गए, लेकिन बैक्टीरियल सेल की अगर यही बात करेंगे तो वो इतने सारे क्रोमोसोम संख्या में जिन्हें गिन सकते हैं, इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल नहीं प्रेजेंट रहता। डबल स्टैंडर्ड तो प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट में भी होता है डीएनए, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है कि यूकैरियोट की जो ये सेल आप देखते हैं, इस सेल के अंदर ये डबल स्टैंडर्ड तो रहता है, ये देखिए इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड रहता है, लेकिन सर्कुलर स्टेज में रहता है और साथ ही साथ सिंगल रहता है। ये कई सारे क्रोमोसोम्स नंबर में जिन्हें डिफाइन किया जा सके वो नहीं होता, बल्कि सिंगल सर्कुलर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। देयर और यहाँ पर जो हिस्टोन प्रोटीन है डीएनए में वो नहीं पाई जाती है कॉइलिंग के लिए। देखिए क्योंकि डीएनए जो है वो
काफ़ी लॉन्ग होता है। जो सेल का साइज़ देखेंगे तो सेल बहुत ही छोटी होती है, उसके कंपैरिजन में जो डीएनए पाया जाता है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। तो इतने छोटे सेल में इतना लंबा डीएनए कैसा? जैसे आप ह्यूमन की एक सेल की बात करें तो लगभग 2 मीटर की साइज़ का डीएनए हर एक ह्यूमन सेल में, यानी आपकी हर एक सेल में करोड़ों खरबों अरबों सेल तुम्हारी बॉडी में है और हर एक सेल में 2 मीटर लंबा डीएनए है। अब सोच लो कि सारा डीएनए खोल दिया जाए तो पता नहीं कितना मीटर लंबा डीएनए हमें मिल जाएगा। तो 2 मीटर को आप खरब से अगर कर लो एक रफ एग्जांपल के लिए, तो यानी 2-3 खरब लंबाई का डीएनए हमारी बॉडी में है। तो यानी ये इतना लंबा डीएनए इतनी छोटी छोटी सेल के अंदर कैसे आता है? सुपर कॉइलिंग से आता है। जैसे आपके बाल बिल्कुल खुले रहेंगे तो एकदम बिखरे रहेंगे, लेकिन उसे ही आप चुटिया बना लोगे, रबड़ बैंड लगा दोगे तो वो एक सिमट से जाते हैं। उसी तरीके से ये जो डीएनए है वो भी सुपर कॉइल होता है, और डीएनए की सुपर कॉइलिंग के लिए कुछ प्रोटीन्स होती हैं। तो यूकैरियोट में उन प्रोटीन्स का नाम होता है हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन्स यूकैरियोटिक सेल में डीएनए की सुपर कॉइलिंग के लिए पार्टिसिपेट करती हैं। कुछ और प्रोटीन्स भी होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये बैक्टीरियल सेल है, इसमें भी कभी भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। जो प्रोटीन पाई जाती है वो कैसी होती है? वो प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, यहाँ लिखा भी है। और केवल और केवल यही ट्रू न्यूक्लिक एसिड के रूप में यही नहीं पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल जो मेन है, इसके अलावा भी डीएनए पाया जाता है। यानी कि आप समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चर, इसीलिए बैक्टीरियल सेल को जो है बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है कि यहाँ पर इनका जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है वो इस तरीके से रहता है। एक्चुअली ये ऊन का धागा है जिसका एक छोर है और एक अंत छोर है, तो सिंगल ही है ये, बट ये उलझ के खुल के ऐसे आपको दिख रहा है। और इस रीजन को जहाँ पर साइटोप्लाज्म ये जेनेटिक मटेरियल रह रहा है उसे कहते हैं NOR, न्यूक्लियर रीजन, या फिर न्यूक्लियर रीजन भी कहते हैं, और इसी को न्यूक्लियोइड कह देते हैं। इसी स्ट्रक्चर को बेटा न्यूक्लियोइड कह देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल में, और ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, प्लाज्मिड जिसे कहते हैं। अब इसके बारे में डिस्कशन करना है। प्लाज्मिड्स इन एडिशन टू द नॉर्मल डीएनए क्रोमोसोम्स मेनी बैक्टीरिया, जैसे कि हमारी आंतों में रहने वाला ई कोलाई बैक्टीरिया, इश्चरीचिया कोलाई बैक्टीरिया, उसमें भी ऐसा होता है, हैव एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स और डीएनए। दीज एलिमेंट्स आर प्लाज्मिड्स, इन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है, और बायोटेक्नोलॉजी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे आर स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स। ये भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी जो डीएनए पाया जा रहा है एक तो ग्रुप है पूरा डीएनए, न्यूक्लिक एसिड जो है वो केवल उसका काम ही है मैसेज कन्वे करना, क्या प्रोटीन बनेगी, क्या एंजाइम बनेगा, ये सारा मैसेज जिसमें रहता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जिस पर भी कुछ जीन्स स्थित होते हैं, और वो हमेशा एक्सप्रेस नहीं होते हैं। कुछ सर्कमस्टेंसेस होती है, एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। बैक्टीरिया अगर एक्सट्रीम कंडीशंस में आ जाए तो वो खुद कुछ ऐसे प्रोटीन्स एंजाइम्स बना सकता है जिससे कि वो उन एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सके। तो प्लाज्मिड जो होता है उस पर ऐसे जीन्स होते हैं। प्लाज्मिड भी क्या है? डीएनए ही है, लेकिन ये इस डीएनए हिस्से से अलग है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए फ्लैजिला पाया जाता है, दिखाया मैंने आपका। फ्लैजिला और फाइन थ्रेड लाइक protoplasmic appendages. These extend through the cell wall and the slime layer of the flagellated bacterial cells. These help in bacteria to swim about in the liquid medium. इस तरह पिलाई या फिम्बरी मैंने आपको दिखाया था, सरफेस बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। Besides flagella, some teeny or small hair like outgrowths are present on the bacterial cell surface. These are pili. They comprise of पिलाइन प्रोटीन नाम होता है, उस प्रोटीन से बने होते हैं। दे कॉन्सिक्वेंटली मेजर अबाउट 0.5 to 2 मिलीमीटर इन लेंथ एंड 3 to 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया से रिलेटेड थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। अब इसके बाद बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये हम देखेंगे। और इसके पहले बैक्टीरिया का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसे कर सकते हैं। बैक्टीरिया पैरासाइट की तरह रह सकता है, यानी पैरासाइट की तरह रहेगा तो इसका मतलब हुआ किसी लिविंग होस्ट पे रहेगा, और होस्ट जो फूड बनाएगा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये
सैप्रोट्रॉप्स भी होते हैं बैक्टीरिया, यानी डेड डिकेइंग मटेरियल पर भी ये ग्रो कर जाएंगे और तब उस न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करेंगे। और कभी कभी ये सिम्बायोसिस भी कर सकते हैं, किसी जीव के साथ सहभागिता करके भी बैक्टीरिया रहते हैं। तो यहाँ हम लोग अब जो डिस्कस करेंगे वो होगा कि बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी को कैसे बढ़ाता है, अपना नंबर कैसे बढ़ाता है। आप जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है इसके लिए पॉपुलर होते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत कम समय में अपनी संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली बैक्टीरिया 2 टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें सिंपली क्या होता है कि एक बैक्टीरियल सेल से 2 बैक्टीरियल सेल बन जाती हैं। तो ये जो बैक्टीरियल सेल में डिवीज़न होता है तो एक्चुअली इसे माइटोसिस नहीं कहा जाता, याद रखेंगे। माइटोसिस टर्म दिया गया है। बस सिंपली क्या होता है कि एक बैक्टीरियल सेल है वो 2 बैक्टीरियल सेल में डिवाइड हो जाती है, पहले ही उसका डीएनए डबलिंग हो चुका होता है, तो ये फिशन कहलाता है। डिवाइडिंग बैक्टीरियम सबसे कॉमन तरीका है बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लेकिन कभी जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो बैक्टीरिया जो है वो स्पोर बना लेता है, और ये इसका सबसे कारगर हथियार है। बैक्टीरिया के ये जो स्पोर्स होते हैं इस रूप में ये हजारों मतलब ये सैकड़ों सालों तक भी इस तरह से ये रह सकते हैं, यानी बहुत ही एक्सट्रीम, कहने का मतलब है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, अपने आप को स्पोर बना लेते हैं ये। और इसके बाद ये कुछ बैक्टीरिया जो है उनमें कुछ स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो भी पाया जाता है, जिसमें से 3 तरीके से बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। एक्चुअली ये ट्रू टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन जो इनकी मोड है, पैटर्न है जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने का, वो उसे कंपेयर करके इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा गया है। तो इसके 3 टाइप्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन। एक्चुअली ये बहुत ही एलेबोरेट टॉपिक है, इस पर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हुई हैं और नोबेल प्राइजेज़ भी इन डिस्कवरीज़ के बेसिस पर मिले हुए हैं। तो लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊँगी ट्रांसफॉर्मर क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन, इन दिस प्रोसेस द डीएनए फ्रॉम द कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इज ट्रांसफर्ड इनटू अ नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया से जब डीएनए नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया जाता है तो जो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है वो भी कैप्सुलेटेड हो जाता है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया और कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में बदल गया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसी तरह से सेकंड मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया है ट्रांसडक्शन। इन दिस प्रोसेस द डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल इनटू अनदर बैक्टीरियल सेल विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरियोफेज। जब कभी बैक्टीरियोफेज एक्चुअली क्या है, वायरस है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र वायरस के माध्यम से हो। इस वायरस ने पहले इसे इन्फेक्ट किया, फिर इसे इन्फेक्ट किया, तो इस तरीके से अगर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ तो इसे ट्रांसडक्शन कहा जाता है। ये एस्चेरिचिया कोलाई, माइक्रोकोकस सैल्मोनेला बहुत सारे स्पीसीज में देखा गया। और सबसे एडवांस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड माना गया है, जैसे कि कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन इज द प्रोसेस इन विच द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियल सेल ऑफ ए पर्टिकुलर स्ट्रेन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए डोनर मेल इनटू द अनदर बैक्टीरियल सेल दैट इज रेसिपिएंट और फीमेल। एक्चुअली बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें देखा गया है कि उनमें एफ फैक्टर बनते हैं, फर्टिलाइजेशन फैक्टर इन्हें कहते हैं, आपने देखा होगा कहीं। तो या जो हमेशा निश्चित होता है कि कौन बैक्टीरियल सेल जो है वो जेनेटिक मटेरियल को डोनेट करेगी, और जो दूसरा होता है वो जेनेटिक मटेरियल को रिसीव करता है। जो डोनर होती है वो उसे कहते हैं उसके पास एफ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो फैक्टर्स जो होते हैं वो रेसिपिएंट वाले बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, और इसी प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहा जाता है। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए बैक्टीरियल सेल ऑफ ए पर्टिकुलर स्ट्रेन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ डोनर और मेल इनटू दैट ऑफ अनदर बैक्टीरियल सेल रेसिपिएंट और फीमेल ऑफ अ डिफरेंट स्ट्रेन। दोनों अलग अलग स्ट्रेन के होते हैं। द डोनर सेल्स आर नोन टू पॉसेस अ सेक्स फैक्टर और एफ फैक्टर एंड द रेसिपिएंट सेल डज नॉट हैव दिस फैक्टर एंड हेंस इट इज डिस्क्राइब्ड एज एफ स्ट्रेन। तो इसके बाद ये बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी जान लेना है। स्पेशली यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताई है। अगर हम अदर ग्रुप पूरे
मोनेरा किंगडम को देखेंगे तो साइनोबैक्टीरिया को हमें देखना पड़ेगा, जिसमें से साइनोबैक्टीरिया में बताया था कि वो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। कौन? साइनोबैक्टीरिया बढ़ाते हैं। लेकिन साइनोबैक्टीरिया वाटर ब्लूम्स भी कॉज करते हैं, तो इसलिए वो पोल्यूशन कॉज करते हैं और इस तरीके से वो क्या है, हार्मफुल होते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया, अगर हम सिर्फ बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखेंगे तो हमें मिलेगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर वेरी गुड डिकम्पोजर्स, यानी कहीं भी किसी डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, किसी प्लांट की डेब्रीज पड़ी होती है, तो उसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, और इसके अलावा कुछ और। लेकिन ये तो हमने फ्रूटफुल बैक्टीरिया को देखा। रॉटनिंग ऑफ फाइबर्स यानी रस्सी बनाते हैं, तो उसमें भी बैक्टीरिया कुछ मदद करते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। फिर कुछ लेकिन बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों पढ़ते हैं। जितने भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ग्रुप्स बताए गए, एनिमल्स बताए अभी तक, या प्लांट्स कुछ भी डिस्कस किया गया है, उनसे क्या फ़ायदा है, नुकसान है, यही जानना ही मेन क्लासिफिकेशन का पर्पज़ था। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप सभी की ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें, और स्पेशली बैक्टीरिया की तो आपको जरूर जाननी चाहिए। तो सम आर पैथोजन, सम बैक्टीरिया आर पैथोजन दैट कॉज डिजीज एंड कॉज डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स एंड फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। लाइकवाइज कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस एंड सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनास साइट्री नाम का बैक्टीरिया होता है। तो वो जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फैमिली होती है प्लांट्स की, उनमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं और सिट्रस कैंकर डिजीज़ का नाम होता है। इसी तरह कॉलरा, टाइफाइड, टिटनस जो है वो ह्यूमन में होने वाले बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, एंड दीज आर वेल नोन डिजीज़ कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। इसके अलावा बैक्टीरिया का एक और स्पेशल ग्रुप होता है जिसे हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया को फिल्टर करने के लिए जो फिल्टर्स बनाए जाते हैं, उनमें से जो सबसे छोटा फिल्टर होता है, उनमें से भी माइकोप्लाज्मा पास हो जाता है, यानी कि ये सबसे छोटे बैक्टीरियल फिल्टर से भी क्रॉस हो जाता है। माइकोप्लाज्मास और माइकोप्लाज्मेटा इज अ जीनस ऑफ बैक्टीरिया दैट लैक अ सेल वॉल। इनकी खास बात क्या होती है कि इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अभी बैक्टीरिया में आपने देखा कि बैक्टीरिया का जो सेल एनवलप है उसमें सेल वॉल भी पाई जाती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल उसकी सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर नहीं पाई जाती। दिस कैरेक्टरिस्टिक मेक्स देम नेचुरली रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। तो भाई जब सेल वॉल पाई ही नहीं जाएगी तो एंटीबायोटिक्स तो मेनली सेल वॉल के स्ट्रक्चर को ही डैमेज करती है, जैसे पेंसिलिन जो है उसी तरह काम करती है, मैंने बताया आपको। तो सो दे आर नेचुरली रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स दैट टारगेट सेल वॉल सिंथेसिस। दे कैन बी पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक। सेवरल स्पीसीज आर पैथोजेनिक। माइकोप्लाज्मा जो है वो भी बीमारी फैलाते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा निमोनी विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ वॉकिंग निमोनिया, और कुछ और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को फैलाते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जेनाइटैलम जो है वो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, यानी हमारा जो पेल्विक पोर्शन होता है, नीचे का पोर्शन होता है, वहाँ पर रिप्रोडक्टिव पोर्शन में एंट्री पॉइंट में, वहाँ पर वो उस रीजन में वो इन्फेक्शन माइकोप्लाज्मा जेनाइटैलियम इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है माइकोप्लाज्मा के बारे में वो ये है कि ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल है जिन्हें अभी तक ढूंढा गया है, या स्मॉलेस्ट सेल है जिसे कह सकते हैं। तो इसका नाम क्या है? PPLO, जिसका फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। NCERT में लिखा हुआ है PPLO, तो सब स्मॉलेस्ट सेल है ये PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी दो बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट इनके बारे में, एक बात तो क्या है कि इनके सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल नहीं होती, और दूसरी बात क्या है, ये एनऑक्सीजेनिक एनवायरनमेंट में यानी विदाउट ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं और बहुत सारे शेप्स में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ इनमें देखिए जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो तो DNA के रूप में है, बट साथ ही साथ इसमें जो है वो RNA भी प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में सॉल्युबल प्रोटीन्स प्रेजेंट है, और लिपोप्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन है, जबकि सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है। तो इस तरीके से ये डिस्कशन जो है ये सम अप होता है। सो मेनी थैंक्स फॉर हियरिंग मी विथ पेशेंस। और आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस किया है। एक्चुअली सीनियर क्लास में हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते कि
कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को छोड़ देगा और बिल्कुल सुपरफिशियली टच कर लिया और कोर्स कवर करके भागना है। तो वैसे तो कोर्स कवर करने का जैसा भी बनाया मैंने वीडियो मोनेरा पार्ट 1, लेकिन मोनेरा पार्ट 2 एक्चुअली जो था वो मैंने फोकस किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्कशन है एक्चुअली बैक्टीरिया को सिर्फ एक 40-50 मिनट में नहीं कवर किया जा सकता, बट मैंने ट्राई किया कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो एक साथ लाए जा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।